Hello students, we are seeing Science chapter 1 of class 8. Okay, that is crop production. And management. We were seeing basic practices of crop production, है ना. हमने कल ये स्टार्ट किया था बेसिक practices of crop production, and we have seen the first practice in detail, that is preparation of soil. What is the meaning of preparation of soil? The loosening of soil is called preparation of soil. The making soil loose and airy is called preparation of soil. Why it is done? It is done to make the soil smooth and soft. Okay, and after preparation of soil, the second step, what is done? It is preparation of soil is done with the help of plow and hoe. This we have seen. Now we are going to focus on second practice, that is sowing. Sowing means what? Seed sowing. Now seed sowing, we divide it into two categories. Number one is selection of seed, and number two is sowing of seed. Selection of seed मतलब if you want to increase the production of crops, you have to select seeds of best quality. अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपको सीड्स कैसे लेनी है? बेस्ट क्वालिटी के सीड्स लेनी है. बेस्ट क्वालिटी के सीड्स मतलब कौन से सीड्स? सीड्स हैविंग हाई यील्डिंग प्रॉपर्टी. आजकल कई साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं, जिसके वजह से यील्ड मतलब प्रोडक्शन. ओके, आप क्या कर सकते हो? क्रॉप्स हाई यील्डिंग प्रॉपर्टी वाले सीड्स आपने क्या मतलब साइंटिस्ट क्या करते हैं? इन्वेंट करते हैं और बाद में इनको फार्मर्स को बेचा जाता है, जिसकी वजह से ये सीड्स का क्या करें मतलब कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आपको मिल सके. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ बेस्ट क्वालिटी सीड. सेकेंड इज दिस सीड्स नीड लेस वाटर. They are hybrid seeds, na? These seeds are hybrid. Seeds need less water. They have high resistance to diseases. जब diseases वगैरह आते हैं कोई, तो ये diseases को ये seeds कैसे होते हैं? They are high resistant to diseases. Okay, and they can bear, means they can stand for high temperature. They can stand in extreme condition. We will see मतलब extreme condition है, बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो भी ये सीड्स क्या होती है? उसको स्टैंड कर सकती है. मतलब they do not get damaged or destroyed. Okay, so these are best quality of seeds. The first step in sowing is selection of seed, and second step is sowing of seeds. अभी seeds sow कैसे किए जाते हैं? जमीन के अंदर. कैसे? They are sown at proper distance from each other. At proper distance from each other. This is first. They are sown at proper depth. Okay, अगर बहुत सारे सीड्स हमने एक ही जगह पे सो कर दिए तो क्या होगा?
ये सारे सीड्स एक ही प्लेस पे ग्रो होंगे, सारे के सारे प्लांट्स एक ही जगह पे ग्रो होंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, सारे प्लांट्स को हमें पता है कि दे नीड वाटर, दे नीड सनलाइट, दे नीड न्यूट्रिएंट्स, और दे हैव टू compete with each other. तो for that purpose the seeds should be sown from proper distance. Okay, they are sown at proper distance from each other. The distance should not be much more, otherwise the space will get wasted, you will get less production. If they are crowded, then it is also not right. Okay, they should be sown at proper distance from each other. Second, अगर ये सरफेस के ऊपर ही स्प्रेड कर दिए तो पहले क्या किए जाते थे, जो सीड्स है वो स्प्रे किए जाते थे, हाथ से फेंके जाते थे. ये हाथ से फेंके जाने की वजह से क्या होगा, सीड्स सारे के सारे सरफेस पे ही गिरेंगे, और जो ग्राउंड के ऊपर दिखने वाले सीड्स से बर्ड्स उनको खा सकते हैं, है ना. सो दिस सीड्स आर सोन एट प्रॉपर डेप्थ, मतलब ये अगर ऊपर की सरफेस है और नीचे अगर पूरी मिट्टी है, सरफेस के ऊपर सीड सो करोगे तो वो बर्ड्स खा लेंगे. ज़्यादा डीप अगर आपने सो किए तो इसको ज़मीन पे आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, स्टेम को ज़मीन के ऊपर निकलने से पहले, तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो दे शुड बी सोन एट प्रॉपर डेप्थ ऑल्सो. Seeds should be sown at proper distance from each other. Seeds should be sown at proper depth. इसके बाद में the soil should be correctly moistured, properly moistured. हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं ना पहले, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का एक बेनिफिट ये भी है कि उसके वजह से आपकी सॉइल कैसे हो जाती है, मॉइस्चर हो जाती है. अगर आपकी सॉइल ड्राई है तो ड्राई सॉइल में सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वी नो दैट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड वाटर इज नेसेसरी. इफ देयर इज लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा वाटर अगर सीड सोइंग के समय पे है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वाटर क्या करेगा, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में कि जितनी भी जगह है वहाँ पे वाटर भर जाएगा, तो सीड को एयर भी नहीं मिलेगा. एयर एंड वाटर बोथ थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड. दैट इज वाई द सॉइल शुड बी प्रॉपरली moisture. It should not be completely dry or it should not be water logged. Okay, so these are two main things which we should know about sowing. Okay, now third is instruments used for sowing. Instruments used for sowing. Sowing के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया जाता है? पहले तो ये मैन्युअली करते थे. इट वॉज डन मैन्युअली मीन्स बाय हैंड. एंड नाउअडेज इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल. ये सीड ड्रिल या तो ट्रैक्टर को अटैच होता है या बुलक कार्ट को अटैच होता है. मैं आपको बुलक कार्ट से अटैच हुआ जो सीड ड्रिल है, जिसका पिक्चर आपके बुक में दिया है, वो दिखा रही हूँ. सी जे बुलक्स को यहाँ पे देखो, ये सीड ड्रिल अटैच किया हुआ है. ये फनेल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये फनेल है. ये फनेल को नीचे पाइप होता है, यहाँ ऊपर से सीड्स डाले जाते हैं. ये सीड्स यहाँ नीचे क्या जाएंगे, सॉइल के अंदर. मतलब जब वो आप प्लोइंग की प्रोसेस करते हो ना, तो जैसे ही मिट्टी आगे बढ़ती है उस जगह पे सीड भी गिरती है, और पीछे से उसको एक फ्लैट सरफेस अटैच होता है जो वो सीड के ऊपर क्या करता है, मिट्टी डाल देता है, ताकि बर्ड्स को सीड्स आपके दिखे ना. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सिंगल हेडेड सीड ड्रिल था. इसके बाद में ट्रैक्टर को अटैच सीड ड्रिल ऐसे दिखता है. यहाँ पे ऊपर से आप सीड्स डालोगे, ये अलग अलग रोज में, मतलब बुलक वाले इससे आप वन टाइम एक ही रो क्या कर सकते थे, रो में सीड्स डाल सकते हैं. अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 रोज में एट अ टाइम सीड सोइंग हो रही है. तो ये मेथड क्या करती है, आपका टाइम बचाता है और वर्क कैसे करता है, फास्ट करता है. ओके, सो दिस इज अबाउट सीड सोइंग. नेक्स्ट जो स्टेप है दैट वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट वीडियो.